dear students. Today we are going to learn about adjectives and degrees of comparison. Now, first of all, we will have to understand that what is an adjective. Adjectives are words to describe noun or pronoun. To describe noun or pronoun. एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या करता है, तो कि कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है कि वो चीज कैसी है या फिर वो पर्सन कैसा है, राइट? सो वी विल टेक वन एग्जांपल फॉर दैट. If I say bench, now bench is a noun, right? Bench एक नाम है. Now if I want to describe this bench, I will have to use adjectives, right? So big bench. First I just showed the noun, then I use word to describe the noun. The noun is bench, so I wrote big bench. So here big is what? Big is the description of bench. Big क्या दर्शाता है यहाँ पे? Big ये दर्शाता है कि bench बहुत ही बड़ी है. So it gives us a description of noun or pronoun. So big is an adjective here. So likewise, whichever the word that describes the noun or pronoun is called an adjective, right? We will see one more. Girl, right? Girl is a pronoun. Now I will add one adjective here. Beautiful, right? बेंच की तरह ही मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एक वर्ड बिग बेंच. इसी तरह से यहाँ पे मैंने यूज किया गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल. ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एक वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है कि लड़की बहुत ही अच्छी है दिखने में, राइट? सो ब्यूटीफुल गर्ल. सो ब्यूटीफुल हियर इज एन एडजेक्टिव. सो लाइकवाइज द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एंड टेल्स अबाउट noun or pronoun is called an adjective, but it also can be in a number, right? If I say, it also can be of color. If I say sky, right, यानी कि आकाश, तो sky is a noun. But if I say blue sky, so it described about how the sky is. यहाँ पे blue sky क्या दिखाता है कि आकाश कौन से कलर का है, right? Blue sky. So blue is also an adjective. It is an adjective of color. So colors are also used as an adjective to talk about the things, right? So sky, blue sky, यानी कि blue color का sky. So ब्लू यहाँ पर एडजेक्टिव है. इसी तरह से मैंने बात करा था नंबर्स की, राइट? सो चेयर्स, राइट? चेयर्स एक नाम है यानी कि कुर्सी, चेयर्स. बट इफ आई ऐड नंबर्स, टू चेयर्स, राइट? सो नाउन इज दिस. But then I describe the noun. मैंने यहाँ पे क्या किया कि दिखाया कि चेयर कितनी है. So two chairs. So two is also an adjective here. So it can be about quality, यानी कि बेंच कितनी बड़ी है, छोटी है. जैसा कि मैंने गर्ल में भी कहा, दिखने में अच्छी है, बुरी है, right? So it can be of quality also. Adjectives quality भी दिखाता है कि वस्तु कैसी है. Then it also can be of color. Color भी adjective हो सकता है. Then it can be also a
नंबर, यानी कि एडजेक्टिव्स नंबर में भी आ सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट इज आल्सो शेप। Car. If I say car and then I write big car, right? तो यहाँ पे big क्या दिखाता है कि उसका शेप कैसा है, राइट, यानी कि वो बड़ी है, छोटी है, शेप दिखाता है। इसी तरह से कई अलग अलग तरह के विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम यूज करते हैं कोई भी वस्तु या फिर पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। So it is called an adjective. Now we will see the degrees of comparison. The first thing we did here is we understood that what is an adjective. Adjective is a word that is used to describe nouns or pronouns. And then we learn about the different types of adjectives of numeric, then it is of colors and other things, right? Now we will move on to the degrees of comparison. There are three types of degrees of comparison: positive, comparative, and superlative. Right? Now, these both subjects are connected with each other. That's why I have taken it with each other. Adjectives and degrees of comparison. Right? As I said about adjectives, we use adjectives to describe the quality and other things of any thing or any person. Right? Now in degrees of comparison, we use that quality to compare it with other. Like if in general I say big car, alright, I said big car, so big is an adjective. यहाँ पे big एक adjective है, right? Big car, बड़ी कार. But now, whenever I compare the quality, ये big क्या होता है? Big car यानी कि एक quality की कार छोटी है, बड़ी है, दिखने में कैसी है, right? So it is a quality of car, big car. So अब मैं जब इस description को compare करता हूँ, right? If I write So now first I wrote big car. So big is a quality of car, that how the car is. It is big, it is small, right? So it is a big car. Then I compare the quality of car. This car is as big as his car, यानी कि ये कार उतनी ही बड़ी है जितनी उनकी कार है, right? So this car is as big as his car. So मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों कार, लेकिन कंपेयर किसकी वजह से किया मैंने, एडजेक्टिव्स की वजह से, राइट? बिग, तो मैंने कंपैरिजन में यहाँ पे क्या लिया, इस कार की क्वालिटी जो कि एक बिग है, बिग कार है, राइट? सो वी कंपेयर टू थिंग्स, राइट? मैंने क्या यहाँ पे कंपेयर किया, दो कार, लेकिन किसके ऊपर से, उसकी क्वालिटी कैसी है उसकी वजह से, राइट? सो वी यूज adjectives to show the quality, and likewise adjectives and degrees of comparison are connected in order to show the comparison. Now
we will learn one by one the degrees of comparison. First is positive, then second is comparative, the third is superlative degree. In positive, the structure is as plus adjective plus as, right? Now in positive degree the structure is as plus adjective plus as, right? अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो एडजेक्टिव है वो सेम टू सेम रखेंगे, लेकिन उसके आगे एस और उसके पीछे एस, एंड बाद में हम ऐड करेंगे यहाँ पे कंपेयर्ड सब्जेक्ट, राइट? सो पॉजिटिव डिग्री इसलिए कहा जाता है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए कि वो कंपैरिजन सेम है, यानी कि पॉजिटिव मैनर में, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट वी विल राइट एज, देन एडजेक्टिव, देन एज, एंड देन द सब्जेक्ट दैट इज कंपेयर्ड, यानी कि फर्स्ट हम लिखेंगे एज, बाद में विशेषण, बाद में फिर से एज, एंड लास्ट में हम लिखेंगे जो भी जिसके साथ हमने किसी भी चीज या फिर पर्सन को कंपेयर किया है उसका नाम, राइट? सो आई विल राइट एन एग्जांपल हियर. She is as beautiful as her mother, right? So what I did here, I compared one girl with her mother. मैंने एक लड़की को उसकी माँ के साथ कंपेयर किया, राइट? सो शी इज, फर्स्ट हम लिखेंगे जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, राइट? जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं. आई एम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंपेयरिंग दिस गर्ल विथ मदर, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ? उसके मदर की नहीं, इस लड़की की, राइट? सो द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू राइट इज व्हाट यू आर कंपेयरिंग, राइट? आप जिसको कंपेयर करना चाहते हैं उसे हम पहले लिखेंगे, राइट? पहले हम किसको लिखेंगे यहाँ पे? शी इज, यानी कि डॉटर. शी इज, देन एज प्लस एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव हियर इज ब्यूटीफुल, विशेषण ब्यूटीफुल है. सो एज प्लस एडजेक्टिव ब्यूटीफुल प्लस फिर से एज, राइट? एंड लास्ट में हमने क्या लिखा? कंपेयर्ड सब्जेक्ट, यानी कि लड़की को हमने किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं? उसकी माँ के साथ, राइट? सो जो इसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं उसको हम लिखेंगे लास्ट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दैट गर्ल, देन एडजेक्टिव, एंड लास्ट में जिसके साथ हमने उसको कंपेयर किया है उसके साथ, राइट? सो शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर. सो दिस सेंटेंस इज ऑफ positive degree of comparison, right? We will do one or more example for that. He can run, right? He, हमने एक लड़के को कंपेयर किया. He can run as fast as the champion, right? इस सेंटेंस में हमने क्या किया? he, right? we are comparing one male figure, यानी कि हम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंपेयर करना है हमें एक लड़के को. सो we will first write he can run, वो दौड़ सकता है, लेकिन कितना? as plus adjective fast plus as, he can run as fast as the champion. तो हमने किसके साथ लड़के को कंपेयर किया है? एक जो रनर है, एक चैंपियन है, उसके साथ हमने कंपेयर किया है. सो फर्स्ट वी रोट अबाउट द
that boy he can run, then we use adjective fast, यानी कि दौड़ सकता है लेकिन बहुत तेज, राइट? He can run as fast as the champion. So the champion जो है चैंपियन है उस वो क्या है? कंपेयर्ड सब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे कंपेयर्ड सब्जेक्ट. कंपेयर हमने किया है एक चैंपियन के साथ. सो द चैंपियन इज कंपेयर्ड सब्जेक्ट. एंड हियर आल्सो हमने एक लड़की को उसकी मदर के साथ कंपेयर किया, राइट? सो मदर इज कंपेयर्ड सब्जेक्ट एंड कंपेयर्ड सब्जेक्ट को हम हमेशा लास्ट में रखेंगे, राइट? सो आई विल राइट वन मोर एग्जांपल. The sentence I have written is this flower is as beautiful as rose. तो हमने किसकी बात की है यहाँ पे? एक अननोन फ्लावर की, एक फ्लावर के बारे में बात कर रहा है. सो फर्स्ट आई रोट which thing I want to compare, right? मैं यहाँ पे फ्लावर को कंपेयर करना चाहता हूँ. Then as beautiful as plus adjective beautiful as rose. तो मैंने किसको कंपेयर किया है? एक फ्लावर को रोज फ्लावर के साथ. So it is a compared subject. So likewise we will have to use as plus adjective plus as and then compared subject to make a positive degree of comparison, right? Now we will do comparative degree. पॉजिटिव हम सिर्फ उसको कंपेयर करेंगे पॉजिटिवली, यानी कि दोनों एक जैसे, राइट? दिस फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, यानी कि ये फ्लावर उतना ही सुंदर है जितना कि एक रोज है, राइट? सो द कंपैरिजन इज सिमिलर, वो क्वालिटी दोनों में है, राइट? बट हियर इन कंपैरेटिव डिग्री व्हाट वी विल डू इज we will do comparison of two things, but one will be of more quality, right? I will write one example here. First we will see the structure, right? Now what we will do here in this, in comparative degree, we will write one adjective first, then we will add er into adjective, right? So if I say pretty, राइट? मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रेटी. प्रेटी यानी कि बहुत ही सुंदर. बट इन कंपैरेटिव डिग्री आई विल हैव टू मेक प्रेटी इनटू प्रेटियर. तो हमने यहाँ पे क्या किया? प्रेटी वर्ड के पीछे बाई जो लास्ट लेटर है उसे हम निकाल देंगे और उसकी जगह पर हम लिखेंगे ई आर, राइट? सो प्रेटी, प्रेटियर, कोई
colder. इसी तरह से सभी if it is hot then hotter. इसी तरह से जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे हम लिख देंगे er, राइट, er. सो pretty में से y निकाल के prettier, राइट. whenever there is y, remember अगर जो एडजेक्टिव है यहाँ पे pretty है तो लास्ट में y है, राइट. तो y को निकाल के हम लिखेंगे यहाँ पे I-E-R, राइट. I-E-R. सिर्फ y हो तो ही. In cold, the last letter is D, it is not Y, right? So we will just add ER into both. Cold, colder, hot, hotter, right? So इसी तरह से comparative degree में adjective के पीछे हम लिखेंगे ER plus then and last में compared subject. So अब हम example से देखेंगे. Right? So the sentence is she is, right? First of all हम क्या लिखेंगे? जो भी हम कंपेयर करना चाहते हैं, right? एक गर्ल को यहाँ पे मैंने लिया है, she is prettier, right? The structure is adjective plus er, तो pretty adjective है, उसमें से y निकाल के हमने क्या किया? I E R, यानी कि लास्ट में मेनली हमने er ऐड किया. She is prettier than her friend, right? So she is then adjective plus er, prettier plus then, so then and compared subject that is her friend. हमने उसको उसकी एक फ्रेंड के साथ कंपेयर किया है, इसलिए जिसके साथ हमने कंपेयर किया उसे हम लिखेंगे लास्ट में. तो she is prettier than her friend. So इसी तरह से हमें सिर्फ er लास्ट में लिखना है एडजेक्टिव के बाद and then लगाना है, right? We will do one more example of that. The sentence is Joy sings better than she, right? So Joy यहाँ पे किसकी बात की है? Joy की बात की है. Sings better than, better क्या है? एक adjective, right? इसमें already er लगा हुआ है. Joy sings better than she. So er and plus than and plus compared subject. So comparative degree में इसी तरह से हमें adjective plus er लिखना है. बाद में हम लिखेंगे then and लास्ट में जिस चीज के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं उसे हम लिखेंगे, राइट. Now we are clear with positive and comparative, and the last is superlative. सुपरलेटिव डिग्री, राइट. सुपरलेटिव में हमें क्या करना है कि फर्स्ट में हमने क्या किया, जो भी चीज जिस चीज के साथ हमने कंपेयर किया वो चीज बहुत ही सिमिलर है. एज ब्यूटीफुल एज दिस फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, यानी कि दोनों फ्लावर ही बहुत ही अच्छे हैं. इसके साथ हमने क्या किया कंपैरेटिव में, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और एक कम. दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन रोज, यानी कि रोज से अच्छा है, तो एक बहुत ज्यादा अच्छा होगा और एक कम, राइट. सो इन पॉजिटिव वी डू दैट, इन कंपैरेटिव वी नीड दैट, इन सुपरलेटिव में हमें वो दिखाएंगे
कि सबसे ज्यादा अच्छा, राइट? वी विल नॉट कंपेयर इट विथ वन सब्जेक्ट। इन सुपरलेटिव वी विल से एडजेक्टिव प्लस EST and plus compare subject, right? So इसका स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पीछे हम लगाएंगे EST एंड देन लास्ट में लिखेंगे compare subject। सो हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। If the word is pretty, so I will remove y, right? पहले हमने क्या किया था, prettier, तो हमने ear लगाया था, वहां पे हमने y निकाल दिया था। यहाँ पे भी हमें y निकाल देंगे और pretty, S-I-E-S-T, prettiest, तो हमने एडजेक्टिव के पीछे EST लगा दिया, राइट? इसी तरह से एडजेक्टिव्स प्लस EST प्लस कंपेयर सब्जेक्ट। हमने पहले एग्जांपल लिया था एक कोल्ड का, राइट? सो कोल्ड इज वी विल यूज इन पॉजिटिव डिग्री, देन इन कंपैरेटिव हमने यूज किया था कोल्डर, राइट? और अब सुपरलेटिव के लिए वी विल ऐड कोल्ड EST, कोल्डेस्ट, राइट? सो पॉजिटिव में हम यूज करेंगे कोल्ड, देन कंपैरेटिव में हम यूज करेंगे, मैंने बोला था ईयर, राइट? तो कोल्डर एंड सुपरलेटिव जो हम अभी कर रहे हैं उसके लिए हम यूज ऐड करेंगे पीछे EST, कोल्डेस्ट, राइट? इसी तरह से एडजेक्टिव प्लस EST एंड प्लस कंपेयर्ड सब्जेक्ट। सो नाउ वी विल डू वन और मोर देन वन एग्जांपल फ्रॉम द स्टेट द सुपरलेटिव डिग्री। She is the prettiest girl in the class, right? She is the prettiest girl in the class। पॉजिटिव में हमने क्या किया था, she is as pretty as her mother, right? As pretty as। then in comparative she is prettier than her mother, right? And in superlative degree we will write she is the prettiest girl in the class। so हमने इन दोनों में उसकी मदर के साथ कंपेयर किया था, राइट? सिर्फ एक पर्सन के साथ। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम एक ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे, राइट? ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, क्लास। पूरे क्लास का जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा कोई अच्छी लड़की है तो कौन है, वो, राइट? शी इज द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। सो वी विल नॉट कंपेयर इट विथ वन सब्जेक्ट, राइट? कंपेयर ग्रुप वी कैन से, राइट? कंपेयर ग्रुप यानी कि हम एक चीज के साथ कंपेयर नहीं करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा चीजों के साथ। शी इज द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, इस सेंटेंस में हमने एक गर्ल के साथ नहीं लेकिन क्लास की सभी गर्ल्स के साथ कंपेयर किया। इसी तरह से सुपरलेटिव में हम कई चीजों के साथ एक साथ कंपैरिजन करते हैं। He is the fastest swimmer in the world, right? So the second sentence I wrote here is he is the, so I compared one boy or one male figure, he is the fastest। so
फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, est हम लास्ट में ऐड करेंगे, we will add est at the end of the adjective. So fastest, est fastest swimmer in the world, right? मैंने यहाँ पे क्या किया था, कहा था कंपेयर, सब्जेक्ट ने अगर कंपेयर ग्रुप होगा, यानी कि कोई भी एक के साथ नहीं, कई सारे पर्सन या फिर चीजों के साथ हमें कंपेयर करना है, राइट? सो आई कंपेयर्ड दिस पर्सन विद द ऑल स्विमर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? यहाँ पे जो भी जितने भी स्विमर्स है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, उसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया है, राइट? सो इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में हम जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो कई सारी चीजें या फिर कई सारे पर्सन होने चाहिए, राइट? वी कैन नॉट कंपेयर इट विद वन थिंग और वन पर्सन. So today we learn about adjectives, different types of adjectives, and then we connected with degrees of comparison and learned 3 types of degrees of comparison. First is positive degree of comparison, then second is comparative degree of comparison, and the last we did is superlative degree of comparison. So now we all know about 3 degrees of comparison and adjectives, and you can learn by yourself. Thank you.